یہ کہانی ان 5 معصوم حسن بے مثال کی حامل شریف گھرانے کی لڑکیوں کی ہے جنہیں ابلیس اپنی پرفریب چال میں پھنسا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر انہیں پر اسرار قوتوں سے مالا مال کر کے شیطانیت کے فروغ کے لیے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے، جہاں وہ تباہی و بربادی کے ایسے باب رقم کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ اور بالآخر شیطان کے ان شاگردوں کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایک عظیم روحانی قوت کی مالک پر اسرار عورت کا آنا جانا تھا، اور جس کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی روح تھی یا زندہ حقیقت۔ اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دلچسپیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر شیطان کے چیلوں اور بندگان خدا کے درمیان ایک انوکھی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور چشم تصور کو وہ یادگار مار کے دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے کہانی کے اختتام تک آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹتی۔ تم پہلے سے شادی شدہ ہو شاہد، یا میری تقدیر پھوڑنے کے بعد تم نے یہ شادی کی ہے؟ جواب دو شاہد۔ اور شاہد کا چہرہ اتر گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا، لیکن پھر سنبھل گیا۔ اور تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے شمی؟ میری بات کا جواب دو شاہد، مجھے صرف جواب درکار ہے۔ وقت آ گیا ہے شمی کہ میں تم پر اپنی حقیقت کھول دوں، اور ہمارے دشمنوں نے ہمارے درمیان ایک وسیع خلیج حائل کر دی ہے، اتنی وسیع کہ اگر میں تمہیں حقیقت سے حال سے روشناس نہ کروں تو نہ جانے کیا کیا ہو جائے۔ آؤ شمی، براہ کرم اس وقت تک کے لیے برے خیال کا ذہن سے نکال دو، اور جب تک کہ تم پر میری حقیقت واضح نہ ہو جائے، آؤ میں اس سے قبل تم سے کچھ نہ کہوں گی۔ کچھ ایسی اداکاری کی تھی اس نے نومی کہ میں بھی بے وقوف بن گئی، اور میں اس اسرار کو جاننے کی خواہاں ہو گئی، اور جس کے بارے میں شاہد نے کہا تھا، اور شاہد مجھ پر اپنی کار میں لے آیا، اور وہ بہت سنجیدہ تھا۔ میرے استغفار کے باوجود خاموش رہا، اور بس اس نے ایک جملہ کہا تھا، چند لمحات توقف کرو شمی، اور تم پر تمام حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ میں اس کا فریب نہیں سمجھی، اور تجسس میں ڈوبی یہاں تک آ گئی، اور آخری وقت تک میں اس کی چال نہ سمجھ سکی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا جب شاہد نے مجھے اس پہاڑی کی چوٹی سے نیچے دھکیل دیا، اور میں گہرائیوں میں جا رہی تھی، لیکن شاید میری روح نیچے پہنچنے سے قبل ہی بدن کی قید سے آزاد ہو گئی، اور میں نیچے گرتے گرتے بدن کو دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے اپنے ہاتھوں میں لپک لوں، لیکن ان نادیدہ ہاتھوں میں اتنی قوت نہیں تھی، اور میرا بدن پانی میں آ کر گرا اور یگاں لہاں لگی جھاڑیوں میں اٹک گیا۔ وہ جھاڑیاں اب یہاں نہیں ہیں، پہلے تھیں، اور میرا وجود بہت ہلکا ہو گیا تھا، اور میں ہر فکر سے بے نیاز ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے آج تک میں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، کوئی خیال ہی نہیں آیا مجھے، لیکن نہ جانے کیوں نومی اس وقت مجھے سب یاد آ رہا ہے، سب کچھ۔ ہمیشہ شرارتوں پر آمادہ رہنے والا نومی بھی سنجیدہ ہو گیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے کہا، آؤ دیکھو شمی، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، اور پتہ تو چلے کہ شاہد اب کس حال میں ہے۔ اور دفتن میرے دل میں بھی شاہد کو دیکھنے کی خواہش جاگ اٹھی، اور اس بار میں تیار ہو گئی۔ نومی میرے ساتھ پرواز کر رہا تھا، اور ہم اس تک کیسے پہنچیں گے نومی؟ اور ہمارے لیے کیا مشکل ہے، چلتی رہو میرے ساتھ، میں تمہیں شاہد کی رہائش گاہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دوں گا، آؤ چلتی رہو۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ رہتی تھی، یہ کوئی نئی جگہ تھی، لیکن بہت خوبصورت۔ پہلی کوٹھی سے 1000 درجے حسین اور کشادہ، اور سامنے کی سمت پر بڑا سا لان تھا، اور ایک طرف چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنے ہوئے تھے جو ملازمین کے لیے تھے۔ مالکین کے حصے کی رونق دیکھنے کے قابل تھی، اور ملازم ادھر ادھر دوڑ پھر رہے تھے، اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ نومی ایک گھنے درخت کی شاخ پر الٹا جا لٹکا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، اور یہ دنیا تمہاری ہے، اس نے کہا۔ اور یہ شاہد کی کوٹھی ہے، مگر شاہد کہاں ہے؟ تلاش کرو۔ اور منحوس نومی پھر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسنے کی عادت بھلا کہاں جا سکتی تھی، اور میں اس اجنبی ماحول میں حیران تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کیا کروں۔ بہرحال وہاں سے آگے بڑھ گئی، اور اصل رہائش گاہ کی اقبی سمت نکل آئی۔ اس سمت ایک اور عمارت بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی عمارت جو الگ تھلگ تھی، اور اس کا بڑا سا دروازہ بند تھا، اور مجھے شاہد کی تلاش تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کچھ لوگ اس طرف آتے نظر آئے، اور وہ اچانک گھوم کر سامنے آ گئے تھے، اس لیے میں خود کو ان سے چھپا نہیں سکی۔ چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں، اور انہی میں شاہد بھی تھا، خوبصورت خوبرو شاہد جو پہلے سے زیادہ حسین اور پہلے سے زیادہ جوان نظر آ رہا تھا، اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ آہ، کس قدر خوبصورت لگ رہا تھا وہ۔
उन लोगों ने मुझे देखा और ठठक गए और फिर आगे बढ़ आए। आप शायद भटक कर इधर आ गई हैं खातून। मुलाजमों ने आपको गाइड नहीं किया और किससे मिलना है आपको? और शाहद ने मासूमियत से पूछा। मैं बगौर से देखती रही और मेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल सका। कमबख्त को गुमान भी नहीं होगा कि मैं हूं। और किससे मिलना है आपको? शाहद ने फिर पूछा। किसी से नहीं, बस यूं ही आ गई थी। और मैंने गहरी सांस लेकर कहा, यूं ही? और शाहद हैरानी से बोला, तुम शाहद हो ना? और मैंने तलख मुस्कुराहट से पूछा और शाहद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फराज शाहद। और शाहद मेरे वालिद का नाम है, उसने जवाब दिया। और मैं चौंक पड़ी। और मुझसे भी तो हमाकत हुई थी, भूल हो गई थी कि कोई आज की बात थी। साल हा साल बीत गए थे और तवील अरसा गुजर गया था। मैं नहीं बदली थी, मगर शाहद तो बदल गया होगा, बूढ़ा हो गया होगा वो। और 25 साल कम तो नहीं होते। तो ये शाहद का बेटा है, फराज शाहद। वो सब मुझे हैरत से देख रहे थे। और फिर फराज ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपके वालिद से मिलना चाहती हूँ, मैंने जवाब दिया। ओ खातून, शायद आप किसी दूसरे शहर से आई हैं और शायद आपको मेरे वालिद के बारे में मालूम नहीं। क्या मतलब? वो बीमार हैं, शदीद बीमार। टीबी है उन्हें और दोनों फेफड़े गल चुके हैं और हर वक्त खून थूकते हैं। दरअसल उन्होंने अपनी सेहत अपने हाथों तबाह की है, शराब की ज्यादती। और अब भी बाज नहीं आते। और नौजवान के लहजे में बेजारी थी। तो वो किसी अस्पताल में हैं? जी नहीं, घर पर हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं, नौजवान ने कहा। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अपने दुश्मन आप हैं। क्यों? उनका मर्द शिद्दत इख्तियार कर चुका है और डॉक्टर ने हिदायत कर दी है कि उनसे कतई दूर रहा जाए, वरना कोई भी इस मर्द का शिकार हो सकता है। अस्पताल में क्यों नहीं रखा आपने उन्हें? अस्पताल? वो उन्हें मौत घर कहते हैं और मौत से उन्हें शदीद खौफ महसूस होता है। उनका ख्याल है कि अस्पताल में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और कई बार उन्हें अस्पताल और सैनिटोरियम भेजा, लेकिन भाग आते हैं। बस ये बूढ़े लोग बाज़ औक़ात औलाद के लिए दर्द सर बन जाते हैं। और लापरवाह हो जाओ तो ज़माना अखलाकियात के लाखों सबक दोहरा देगा। लेकिन मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। और शाहद का बेटा बोल रहा था और शाहद का गुनाह बोल रहा था। यह शाहद की हैसियत थी और इस घर में जो मेरी दौलत को गजब करके हासिल किया गया था। और उनके लिए शाहद ने मुझे कत्ल किया और उससे उसकी किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। कुदरत किसी जालिम को इस तरह तो नहीं छोड़ देती। मुझे अनोखा सा सुकून महसूस हुआ। तो शहद की तैमारदारी कौन करता है? बस एक बड़े मियाँ हैं और हमारे पुराने मुलाजम। बचपन से ये मुलाजम हमारे काम करते हैं और मामूली सी तनख्वाह उन्हें मिल जाती है। तो फिर बस ये हमारे साथ हैं और दोनों बूढ़े मौत के मुंतजिर हैं। फराज मुस्कुराकर बोला। कहाँ हैं वो? मैंने पूछा और फराज ने उस अलग थलग इमारत की तरफ इशारा कर दिया जो मेरे अकब में थी। वहां शायद डैडी ने ये इमारत अपने लिए तामीर कराई थी और कोई मसरफ तो नहीं हो सकता उसका। मगर खातून, मैंने आपके सवालात के जवाब तो दे दिए और अब मेरी बारी है। और अपने बारे में कुछ तो बताएं। आपका महल वकू क्या है? मैंने गहरी सांस ली। और झूठ ही बोला जा सकता था इन सब से, और हकीकतों को बर्दाश्त करने की हिम्मत कहाँ होगी इनमें। चुनाचा मैंने कहा कि मैं एक सितम रसीदा हूँ और बेहद बदनसीब। यूरोप में रहती थी और मेरे वालिद साहब शाह साहब के दोस्त थे और उनके सिवा मेरा और कोई नहीं। लाखों रुपए की दौलत की वारिस हूँ, लेकिन इस जगह मैं यहाँ यक्को तनहा हूँ। अपनों के लिए तरसती हूँ। और मरते हुए वालिद साहब ने कहा था कि उनके दोस्त शाहद के पास चली जाओ। और ना जाने कितने वक्तों के बाद यहाँ तक आई हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? फराज के चेहरे पर हमदर्दी के आसार फैल गए और वो बड़ी अपनाइयत से आगे बढ़कर बोला, तो इसकी परेशानी की क्या बात है? आप सही जगह पहुँच गई। बस इतना ही काफ़ी है कि आप यहाँ तक आ गई और हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। फिर फराज ने अपने साथी लड़कियों से मेरा तारफ़ कराया। ये मेरी बहन अजरा शाहद है और ये जबीन शाहद, और ये खिवातीन इन दोनों लड़कियों की सहेलियाँ हैं। और आप? उसने सवाली अंदाज में मुझे देखा। मुझे इस जुर्मट में एक नाम भी घट चुकी थी और मेरा नाम मारिया है। बड़ी खुशी हुई से आपसे मिलकर मारिया। और फराज ने मुझसे हाथ मिलाया, और ख़ास तौर से इसलिए कि अब हमारे साथ रहेंगी। आइए मैं आपको मम्मी से मिलाऊं। बल्कि यूं करो कि अजरा तुम गेस्ट रूम में खुलवा दो और मिस मारियो को पहले गुस्ल वगैरह से फारग होने दो और उसके बाद उन्हें मम्मी से मिलाएंगे। जाओ, कोई तकलीफ ना हो मिस मारिया को। आइए, अजरा नामी लड़की ने कहा, और जो फराज की बहन थी, और मैं उसके साथ चल पड़ी। नोमी का कहका फिर मेरे कानों में उभरा, और यह शरीर तो मेरी इस हरकत से बहुत खुश हुआ था। मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी और लेडीज गेस्ट रूम में कोठी के शयाने शान था। अजरा मुझे खूबसूरत कमरे में छोड़ गई और उसने मेरे सामान के बारे में पूछा। बस बेसरत सामानी की हालत में हूँ और दूसरा कोई लिबास भी साथ नहीं ला सकी। क्या हर्ज है? मेरे कपड़े आपके बिल्कुल दुरुस्त आएंगे।
उसने कहा और मुझे लिबास मुहैया कर दिए गए और मैं बाथरूम में दाखिल हो गई। बदन की कसावत ने मेरे जहन में फौरी तौर पर तब्दीलियां पैदा कर दी और मेरे अंदर ख्वाहिशात बेदार हो गईं। चुनाचा मैंने एक उम्दा लिबास पहना और चेहरा और बाल दुरुस्त किए और जब बाहर आई तो अजरा मेरी मुंतज़िर थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। बहुत खूबसूरत है आप मिस मारिया। शुक्रिया। और यूरोप में आप कहाँ मुकीम थी? फ्रांस में। उसके बावजूद आप बेहद सादा हैं। आइए आपको मम्मी के पास ले चलूं और सब लोग वहां आपके मुंतज़िर हैं। क्या आपने मम्मी को मेरे बारे में बता दिया? हाँ, फराज भैया ने तो ना जाने क्या कहा है मम्मी से। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपके आने की इत्तला थी। जी, मम्मी बहुत दौलत पसंद हैं और उनसे अपनी इमारत के खूब तज़किरे करें और वो आपसे बहुत खुश होंगी। देखिए, हर इंसान की कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, आप महसूस ना करें। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया और फिर मैंने अपनी सौकन को देखा, उस औरत को और जिसकी खातर शाहद ने मुझे कत्ल कर दिया था। किसी दौर में बेशक हसीन होगी और अब तो खंडरात बाकी थे और जिनमें उसने चरागा कर रखा था। उसने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और मेकअप में लुथड़ी हुई थी। मुझे उसके सीने से लगकर सख्त कराहत महसूस हुई। उसने दिलजोई की बेशुमार कलमात कहे और मुझे तसल्लियाँ देती रही कि मैं फ़िक्र ना करूँ, ये मेरा ख़ानदान है। और साथ साथ वो मुझसे मेरे बारे में पूछती जा रही थी और मैं मुसलसल झूठ बोल रही थी, लेकिन मेरा हर झूठ उसकी आंखों की चमक बढ़ा देता और यहाँ मेरी खबड़ी खातर मदारत हुई। काफ़ी देर गुजरे और मुझे उन लोगों से छुटकारा मिला था और अजरा मुझे मेरी ख्वाबगाह में पहुँचा कर गई। अंदर दाखिल होकर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा कि मैं किस चक्कर में पड़ गई थी और मेरी रूह पर झूठ के अंबार लगते जा रहे थे और मैं बोझल होती जा रही थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ से भाग निकलूं और मेरी अपनी दुनिया किस कदर पुरसकून है। कोई झूठ, कोई फ्रेब, कोई जिम्मेदारी नहीं। और नोमी एक रोशनदान से अंदर दाखिल हो गया और मैं गुस्सीले निगाहों से उसे देखने लगी। अब बोलो, क्या करूं? क्या महसूस कर रही हो? बहुत बुरा, और मैं खुश नहीं हूं। हर जिंदा इंसान नाखुश है, बेसकून है, और सुकून सिर्फ हमारी दुनिया में है। और ज़िंदगी और सुकून दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बदन का बोझ लातादाद कसावतों का हाबर होता है और जब जिंदा थी तो इतना गौर नहीं किया था। अब सोचती हूँ तो अजीब सा लगता है। हसद, जलन, फ्रेब और ना जाने कौन कौन से जज्बे छुपे हुए हैं और हड्डियों के इस खौल में। वो औरत मेरी सौकन है और दिल चाहता है कि उसका खीन खून पी जाऊं और मेरी दौलत पर ऐश कर रही है। वरना शाहद के पास क्या था? और शाहद से मुलाकात हुई नहीं, लेकिन सुना है कि उसकी बुरी हालत है और मैं तो उससे नफ़रत करती हूँ, बेपनाह नफ़रत। मिलूंगी उससे और ज़रा बात करूँगी। तो फिर कुछ वक्त गुजारो और लुत्फ़ लो इस माहौल का और उसके बाद वापस चलेंगे। हड्डियों के इस कॉल को यहीं छोड़ देना, क्या रखा है इसमें? हाँ, मुझे अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं शाहद से ज़रूर इंतकाम लेना चाहती हूँ। मैं अब चलता हूँ और तुम्हारे इस बोझल वजूद को आराम की ज़रूरत है, नोमी ने कहा और परवाज़ करता हुआ रोशनदान से बाहर निकल गया। दूसरे दिन भी वो लोग मेरे इर्द गिर्द रहे और बड़ी चाहत का इज़हार किया गया और मेरे लिए और मुझे उन हंगामों से कोई दिलचस्पी ना थी। दोपहर को सब लोगों को आराम करने की आदत थी और इस वक्त मुझे मौका मिल गया और मैं दबे कांव शाहद के आरामगाह की तरफ बढ़ गई। साफ सुथरी जगह थी और फजल को मैंने पहचान लिया। वो बहुत बूढ़ा हो गया था और शायद नाबीना भी, और मेरे कदमों की आहट पर उसने चौंक कर पलकें झुपकाई और बोला, कौन है? लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया और फजल फिर खामोश होकर बैठ गया और मैं अंदर दाखिल हो गई। एक कुशादा कमरा था और जिसमें एक बिस्तर और चंद कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था। एक खिड़की कोठी के पाड़ की जानब खुलती और जिसके पास शाहद बैठा बाहर खला में घूर रहा था। मेरे कदमों की आहट पाकर पलटा और फिर बिल्कुल लागर हो चुका था और आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़े हुए थे। होंठ खुश्क थे और गाल पिचके हुए और मुझे देखा और देर तक घूरता रहा और फिर इतनी जोर से उठा के कुर्सी उलट गई। कौन हो तुम? और उसकी आवाज़ दहशत से कपकपा रही थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। पहचानने की कोशिश करो शाहद, कौन हो तुम? कौन हो? और अब वो बुरी तरह कांपने लगा था। और वही हूँ जो तुम समझ रहे हो। शमी, नामुमकिन, नामुमकिन, तुम शमी नहीं हो सकती। नहीं, तुम शमी नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है? मैंने पलट का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, ये नामुमकिन है शाहद, क्योंकि शमी को तुमने 25 साल कबल हलाक कर दिया था, ठीक है ना? फिर तुम कौन हो? कौन हो तुम? बस बदहवास होने की जरूरत नहीं शाहद।
मैं जो कोई भी हूं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी, और इस कदर खौफजदा क्यों है? मैंने तंदी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और फिर बोली, लेकिन तुम्हारा खौफ भी ठीक है। हर मुजरम बुज़दिल होता है और वह जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने जुर्म को फरामोश नहीं कर सकता। यकीनन तुम्हारी भी यही कैफियत होगी, और इस तरह तुम अपने खौफ में हक बजानब हो। तुम मेरा वहम नहीं हो सकती। तुम्हारे खदो खाल, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज़, सब कुछ वही है, सब कुछ वही। अगर तुम्हें इस कदर एतमाद है तो ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ कि मैं शमी हूँ। मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? और तुम्हारी ये शक्ल सूरत, तुम बूढ़ी भी नहीं हुई। और मरने वाले अपनी जगह पर रुक जाते हैं शाहद, और फिर उनकी उम्र नहीं बढ़ती, और मेरी उम्र वही है जिस उम्र में तुमने मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया था। तो तुम रूह हो, बदरू। और मेरे होंठों पर तलख मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, तुम मुझे एक बुरी रूह कह सकते हो, और तुम्हारे अंदर जो रूह मौजूद है वो यकीनन नेकियों की जनब रागब हो चुकी होगी। क्या ख्याल है शाहद? और कैसी पाई ये जुर्म की ज़िंदगी तुमने? मैं तुम्हारे अहले ख़ानदान से भी मिल चुकी हूँ, और मैंने उनसे तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की हैं, और महसूस किया है कि तो सब तुमसे नफ़रत करते हैं, और कोई तुम्हारे पास फटकने को तैयार नहीं, इसलिए कि तुम टीबी की आखिरी स्टेज के मरीज़ हो, और तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, और कोई भी तुम्हारा नाम मोहब्बत से नहीं लेता। और ये वही लोग हैं ना शाहद, जिनके लिए तुमने मुझे इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तुमने मुझे इस उम्र में कत्ल कर दिया था शाहद, और जिस उम्र को मंगों की उम्र कहा जाता है। कुछ मिला तुम्हें और इस कत्ल के बाद, और मेरी दौलत से तुमने उन लोगों को ऐश करवा दिए। क्या ख्याल है? और ये दौलत तुम्हारे भी किसी काम आई? कैसा पाया शाहद तुमने इस दुनिया को? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे खौफज़दा नहीं कर सकती शमी, और आखिर तुम 25 साल के बाद मेरे पास क्यों आ गई? बस दिल चाह रहा था कि जाकर तुम्हारी हालत, तुम्हारी कैफियत देखूं। और शाहद, तुमने मेरे बाप की मौत से मुझे बेखबर रखा, और उस बाप की मौत से जिसने मुझे माँ बनकर पाला था, और जिसने मेरे लिए ज़िंदगी की हर खुशी तज दी थी, अपने सुकून और आराम हराम कर लिया था। और तुमने मुझे उस शफीक बाप की मौत से लाइल्म रखा अपनी खुद गर्जी की बिना पर, और उसके बाद तुमने एक औरत के लिए मुझे भी हलाक कर दिया। शायद मेरा क्या कसूर था? मुझे जवाब दो। और क्या मैं तुमसे इंतकाम लेने में हक बजानब नहीं? इंतकाम? और शायद उछल पड़ा तो तुम मुझसे इंतकाम लोगी, और क्या तुम मुझे हलाक कर दोगी? अरे नहीं, मैं हंस पड़ी। तुम तो वैसे ही नीम मुर्दा हो, और तुम्हें हलाक करने से क्या फ़ायदा? और फिर किसी को मौत के हवाले कर देना तो उसके साथ रहम और हमदर्दी है। और ये दुनिया, ये ज़िंदगी जिस कदर नापायदार और जिस कदर तकलीफ तकदा है, वो उसका तुम्हें पूरी तरह एहसास होगा। तुम्हें इस ज़िंदगी से निजात दिलाने का मकसद तो ये है कि तुम्हारे साथ हमदर्दी की गई। हाँ, मैं तुम्हारे कर में कुछ और इजाफा करना चाहती हूँ शाहद, और यही मेरा इंतकाम होगा। तुम क्या करोगी? मुझे बताओ शमी, तुम क्या करोगी? और शाहद ने लड़ते हुए लहजे में कहा, और शायद अब से पहले तो मेरे जहन में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया था, लेकिन अचानक एक तरकीब आई है मेरे जहन में, और बड़ा ही दिलचस्प मशकिला होगा, और ये ख्याल है इसके बारे में। मैंने मुस्कुराते हुए शाहद से पूछा, कैसी तरकीब? और शाहद बदस्तूर खौफ से कांप रहा था, और उसके लिए यह तसव्वुर ही सुहाने रू था कि एक मुर्दा जिस्म उसके सामने मौजूद है, और मैं उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होती रही। दर हकीकत मेरे जहन में एक तरकीब आई थी, और मैं उसके हर पहलू पर गौर कर रही थी। बताओ, क्या इंतकाम लोगे मुझसे? बोलो, जवाब दो। और जब मैं इस इमारत में दाखिल हुई थी तो मैंने तुम्हें देखा, जवान, खूबसूरत, और पहले से ज़्यादा दीदा ज़ेब, और पहले से ज़्यादा दिलकश, और मैंने तुम्हें शाहद कहकर मुखातब किया, लेकिन शाहद वो तुम नहीं थे। फिर कौन था वो? तुम्हारा बेटा फराज, तुम्हारा हम शक्ल, और बिल्कुल तुम्हारी मानद। मैंने मुस्कुराकर कहा, और फिर बोली, लेकिन मैं उसे शाहद समझ लूँगी, और मैं उसे शाहद बना लूँगी, और मैं उसे अपने प्यार के जाल में फांस लूँगी। मैं उसे जिंदा दरगोर कर दूंगी, और शायद ये सब तुम्हारी ज़िंदगी में होगा, और ये सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। कैसी तरकीब है ये? नहीं, खुदा के लिए नहीं, ऐसा मत करना। और मेरी ज़िंदगी चंद रोज़ा है, और मैं तो यूं ही लब गोर हूँ, और मेरे साथ ये सलूक मत करो। काश इससे अच्छी तरकीब मेरे जहन में आ सकती, और काश मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अज़ियत दे सकती। मैं तो फिर भी तुम्हारे मुकाबले में रहमदिल हूँ। और तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया था? जवाब दो, तुमने क्या किया था? और पहले मुझे ज़हनी अज़ियतें दी, और फिर उस वक़्त मौत के मुंह में धकेल दिया जब मैंने ज़िंदगी का आगाज़ किया था, और मैंने कुछ भी तो नहीं देखा था इस दुनिया में। बोलो शाहद, और तुमने ये सब कुछ मेरे साथ नहीं किया था?
मुझे माफ़ कर दो शमी, मुझे माफ़ कर दो। मैं मरीज़ हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांसें पूरे कर रहा हूँ। मैं चंद दिन का मेहमान हूँ और इस दुनिया में मुझे ये अजियत ना दो। मुझे तुमसे नफ़रत है शायद, बेपनाह नफ़रत, और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये सब कुछ जिस पर ये लोग ऐश कर रहे हैं मेरा है, और ये ज़िंदगी तो मेरी थी। लेकिन अब ये सब, तुम इससे भी कड़ी सज़ा की मुझसे को शायद, काश कोई इससे अच्छी तरकीब मेरे जहन में आ जाती। और बस इतना ही बताया था तुम्हें। चलती हूँ। और मैंने कहा, माफ़ कर दो शमी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वह चीखता रहा और मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। मेरा दिल खुशी से उछल रहा था और मैं बेहद मसरूर थी। शहाद की ये कैफियत मेरे लिए बहुत मसरूर कौन थी। उस शख्स ने मेरे साथ जो कुछ किया था उसके इवज़ ये इंतकाम बहुत हल्का था। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। उसने मेरी दौलत, मेरी ज़िंदगी छीन कर दूसरों के कब्जे में दे दी, और मैं उसे माफ़ कर देती नामुमकिन था, कतई नामुमकिन। मुलाजिम फजल वफाएं निभा रहा था और वो बेचारा भी अब किसी काबिल नहीं रहा था, और मैं उसके सामने से गुजर कर चली आई, लेकिन उसे पता भी नहीं चल सका। इमारत से बाहर निकली तो फराद पर नजर आ गया और उसी तरफ आ रहा था और मुझे देखकर ठठक गया और फिर तेजी से मेरे पास आ गया। आप डैडी से मिलने गई थी? मिल लिया ना आपने उनसे? हाँ फराद, आपको हमारी बातों से खौफ नहीं महसूस हुआ? खौफ? डैडी का मर्द छूत का मर्द है और मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती। मैं भी नहीं करता। बस मम्मी के अहकामात हैं कि कोई उनके करीब ना जाए और कोई उनसे ना मिले। ओहो फराज, और क्या आपकी मम्मी शाहिद साहब से नफरत करती हैं? ये बात नहीं, बस मम्मी नफासत पसंद हैं और हिफाज़ान सेहत के असूलों का ख़ास ख्याल रखती हैं। आइए उस दरख्त के नीचे बैठें। फराज ने एक तरफ इशारा किया और मैं उसके साथ चल पड़ी। कुर्बो जवार का माहौल बेहद खूबसूरत था और आसमान अबर आलूद और ठंडी हवा चल रही थी। फराज बहुत खुश नज़र आ रहा था, और अगर मम्मी हिफाज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखती हैं तो शाह साहब की यह हालत कैसे हुई और उन पर वजह क्यों नहीं दी गई? फराज किसी सोच में गुम हो गया और फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। छोड़िए मिस मारिया, आप कहाँ इन उलझनों में पड़ गईं? और मैं आपको बहुत जगह तलाश करके उस तरफ निकल आया था, और बस यूं ही मेरे जहन में यह ख्याल आया कि कहीं आप इस तरफ ना निकल आई हों। शाह साहब मेरे डैडी के दोस्त हैं और मुझे उनसे हमदर्दी है। डैडी अपनी फितरत का शिकार हुए हैं और मम्मी की उनकी तरफ से बेतवजही बिला वजह नहीं। तुम सब लोग बहुत अच्छे हो फराद, और मुझे तुमने बड़ी अपनायत बख्शी है, इसलिए मैं इस घर के मामला से पूरी दिलचस्पी रखती हूँ। और मुझे बताओ फराज, ये सब क्या है? डैडी कभी इस घर से मुखलस नहीं रहे। जिद्दी और ऐश परस्त, शराब और औरत उनकी ज़िंदगी रही, और ये बीमारी भी उन्हीं ऐश कोशिशों का शाखसाना है। मम्मी ने हमेशा उन्हें इन तमाम चीज़ों से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात नहीं मानी, और वो अब भी शराब नोशी करते हैं। हाँ अब भी। और कोई गम तो नहीं उन्हें? नहीं मिस मारिया, और वो गम पालने वाले लोगों में से नहीं। तुम लोग भी उनसे हमदर्दी नहीं रखते। हालात ही ऐसे रहे हैं मिस मारिया। उन्होंने कभी हमें खुद से करीब होने नहीं दिया, और हम हमेशा उनकी मोहब्बत से महरूम ही रहे, और इसलिए अब हम भी उनके आदी नहीं। और क्या नशे के आलम में उनकी जहनी कैफियत कुछ खराब हो जाती है? कभी गौर नहीं किया क्यों? और इस वक्त भी वह हवास में नहीं थे और मैंने पेशबंदी शुरू की। ओहो, आपको कैसे अंदाजा हुआ? और फराज ने चौंक कर पूछा। वो मुझे नहीं पहचान सके और कहने लगे कि उनका कोई दोस्त नहीं हूँ, और मैं झूठ बोल रही हूँ और बेवकूफ़ बना रही हूँ। मैं बदरू हूँ और मैं शमी हूँ। और ये शमी कौन है फराज? मैंने गौर से फराज को देखा और उसके चेहरे के तासरात में नुमाया तब्दीली हो गई, लेकिन दूसरी ने मुझसे संभल कर कहा, और उनके जहन की इख्तरा क्या होगी? वैसे उनकी यह कैफियत नहीं है। बहरहाल मिस मारिया, बराह करम उनके लिए परेशान ना हों, और ये बताएं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? आप जैसे मुखलिस लोगों की मौजूदगी में मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? बहुत खूबसूरत कोठी है आपकी, और अगर आपको पसंद आ गई है तो वाकई खूबसूरत है। शाहद का बेटा बोला, और शाहद की आवाज़ थी, शाहद का अंदाज था। और फिर वो सब लड़कियां आ गईं, शाहद की बेटियां और दूसरे रिश्तेदार लड़कियां। और ये तन्हाइयाँ क्या कह रही हैं? क्यों फराज भाई, अभी तो चंद ही घंटे गुजरे हैं और लड़कियों जैसी बातें करने लगी, और फराज बौखलाने लगा। मैं अनजान बन गई, जैसे उनका मजाक समझने की सलाहियत ना रखती हूँ। यूरोप से जो आई थी, लेकिन इन तमाम बातों से मैं खुश थी, और वो शुरू हो गया था जो मैं चाहती थी। एक लड़की ने कहा कि यूरोप की ज़िंदगी कैसे है मिस मारिया? बस ज़िंदगी जैसी होती है, और सुना है वहाँ बड़ी आज़ादी है। हाँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ बड़ी आज़ादी है, और कोई बोझ नहीं होता। हल्का फुल्का खुशगवार सकूत फिजाओं में होता है। किसी से मोहब्बत नहीं की? एक लड़की ने सवाल किया, और मुस्कुराकर खामोश हो गई। जवाब नहीं दिया तुमने मारिया।
इस बात का जवाब नहीं दे सकती। खैर, अब कर लेना इरादा है। और अजरा ने अपनी दानस में मुझे घुसते हुए कहा, हाँ इरादा है। और मैंने मैनी खेद अंदाज में कहा और लड़कियां फराज को मुबारकबाद देने लगीं। मैं अलबत्ता उसी तरह अनजान बनी रही जैसे उनके माजी ज़मीर से नावाकिफ हूँ। फराज उन्हें डांटने लगा और यूं ये तफरीही शुगल देर तक जारी रहा। रात के खाने पर मैंने मिसेस शाहद को मुतमिन करने के लिए कुछ फजूल गुफ्तगू की और मैंने फराज से कहा, मिस्टर फराज, अब तो मैं यहाँ आ ही गई हूँ और आप लोगों ने मुझे अपने दरमियान भी जगह भी दे दी है। मैं चाहती हूँ कि अपनी दौलत यहाँ मुंतकिल कर लूँ, लेकिन उसके लिए बेहतर ये होगा कि आपको किसी अच्छे से वकील से मशवरा करके मेरा सरमाया मंगवाने की कोशिश करें। हाँ फराज, बेहतर होगा कि तुम नूरुद्दीन साहब से रब्ता कायम करो और बेचारे मारिया की ये मुश्किल हल कर दो। हर चंद के यहाँ रहकर उसे दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बहर सूरत वो उसका सरमाया है और जिस कदर जल्द मुंतकिल हो जाए बेहतर है। और हाँ मारिया, मुझे तुमसे कुछ और गुफ्तगू भी करनी है। तुम एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हो जिससे हम सब बेहद इज्जत करते हैं। और मारिया, अब तुम मेरे बच्चों से मुख्तलिफ नहीं हो। तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। मैं चाहती हूँ कि अब तुम बकिया ज़िंदगी हमारे साथ ही बसर करो। मिसेस शाहद ने फराज के कुछ बोलने से बेशतर ही ये सारी बातें कह डाली और उसकी इंतजामात हो रहे हैं। मम्मी, आप फिक्र ना करें। अजरा ने मिसेस शाहद की बातों के जवाब में कहा, क्या मतलब? और मिसेस शाहद ने ताज्जुब से पूछा, मेरा मतलब है कि आप सब लोग इंतजामात तो कर रहे हैं। और अजरा ने मुस्कुराकर कहा और दूसरी लड़कियां भी ज़ाहिर लब मुस्कुराने लगीं। अजरा का मतलब कुछ और था और फराज उसे घूरने लगा, लेकिन अजरा इन सब बातों से अनजान बन गई थी। ये रात भी खामोशी से गुजर गई और फिर दूसरा दिन शुरू हो गया। वही तफरीहात, वही मामूलात, और मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि मैं यहाँ खुश हूँ या नाखुश। बस जो जज्बा मेरे दिल में पैदा हो चुका था उसकी तकमील चाहती थी और उसके बाद शायद मेरे लिए यहाँ रुकना मुमकिन ना होता। अलबत्ता एक दिन दोपहर को एक छोटा सा दिलचस्प वाक़या हुआ। फराज ने हस्बे मामूल मुझे तलाश कर लिया और ये वक़्त नहाज मौजू था और क्योंकि दूसरे लोग दोपहर को सो जाया करते थे, उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उसे अंदर बुला लिया। यहाँ नहीं रुकेंगी वरना सूरत यकसर गैर मुनासिब हो जाएगी और तुम अभी मकामी माहौल से वाकिफ नहीं हो मारिया। यूं करो कि लान में आ जाओ और उसी जगह जहाँ कल हम लोग बैठे थे और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फराज ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। वो चला गया और मैंने बाल वगैरह दुरुस्त किए और मुस्कुराती उस जगह पहुँच गई। हम दोनों दरख्त की छाँव में बैठ गए और फराज मुझसे बातें करने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफतन ही हमने शाहद को अपनी तरफ आते देखा और वो खिड़की जिसके पास मैंने शाहद को बैठे हुए देखा था उसी जनब खुलती थी और यकीनन शाहद ने हमें यहाँ बैठे देख लिया होगा। और वह हाँफता कांपता उसी तरफ आया और गुस्से की शिद्दत से उसकी रगें फूली हुई थी और आंखों से वहशत बरस रही थी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता फराज, ये बदरू है, ये बुरी बदरू है, इससे बचो और तुम भाग जाओ यहाँ से और ये तुम्हें नुकसान पहुँचा देगी। भाग जाओ फराज, यहाँ से भाग जाओ और उसके फ्रेम में मत आओ और ये बेहद खौफनाक है। वो पागलों के अंदाज में कह रहा था और फराज के होंठ बीच गए और वो नाखुशगवारी के अंदाज में शाहद को घूरने लगा। आप बाहर क्यों चले आए डैडी? आपको इल्म है कि डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया हुआ है। मैं तुम्हारा बाप हूँ फराज और मैं तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ और खुदा के वास्ते मेरी बात मान लो। इस बदरू के पास जाओ वरना ये हम सब को तबाह बर्बाद कर देगी। भाग जाओ फराज और ये हम सब को तबाह बर्बाद कर देगी। भाग जाओ फराज, भाग जाओ और ये हमसे इंतकाम लेने आई है। मैं तुम्हें तबाह करना हूँ, मैं तबाह करता हूँ वरना शायद नुकसान उठाओगे। और शाहद ने कहा और फराज का मूड सख्त खराब हो गया। डैडी आप अंदर जाइए, आराम कीजिए वरना मैं मम्मी को आपके बारे में बता दूंगा। और मेरी बात मान लो फराज, मेरी बात मान लो और खुदा के लिए मेरी बात मान लो, ये तुम्हें जिंदा दरगोर कर देगी। और शाहद ने दर्द भरे लहजे में कहा और फिर मेरी तरफ देख कर बोला, खुदा के लिए माफ़ कर दो शमी, हमें माफ़ कर दो। जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ और फिर दुनिया में वापस चली जा और खुदा के लिए हमें माफ़ कर दे शमी, खुदा के लिए। फराज आगे बढ़ा और उसने शाहद का बाजू पकड़ लिया। डैडी आप इसकी तौहीन कर रहे हैं और ये हमारी मेहमान है, बराह करम आप अंदर चलिए, जल्दी चलिए। और फराज ने सख्त लहजे में कहा और उसने शाहद का बाजू पकड़ लिया था और फिर उसे धकेलते हुए अंदाज में लेकर आगे बढ़ गया। उस इमारत के दरवाजे पर छोड़ आया जहां से शाहद बाहर निकला था और मेरे होंठों पर पुरसकून मुस्कुराहट फैल गई और मैं सारी कार्रवाई से बेहद मुतमिन थी। फराज थोड़ी देर में वापस आ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मैंने लापरवाही से शाने हिला दिए। और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था फराज
कि अब शायद उनकी जहनी हालत भी खराब होती जा रही है। बेहतर ये होगा कि डॉक्टर को उनकी जहनी कैफियत के बारे में बता दिया जाए। मम्मी खुद ये कार्रवाई करेंगी और मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि हमारी पुरसकून गुफ्तगू में उन्होंने गलत अंदाजी की और मूड खराब हो गया है। चले यहाँ से, फराज ने कहा और हम दोनों कोठी की जानब बढ़ गए। दूसरा वाक़या रात के खाने के बाद पेश आया। हम रात के खाने से फारग हुए थे और बैरूनी बरामदे में कुर्सियां डाले बैठे थे कि मिसेज शाहद चौंक पड़ी। उन्होंने सामने देखा और मुतहय्यर रह गईं। ये अपनी रहायशगाह से कैसे निकल आए और उनके लहजे में दुरुस्तगी थी। सबकी निगाहें इस तरफ उठ गईं और वो शाहद था और उसकी हालत कुछ और ख़राब नज़र आ रही थी। बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख हो गई थी और वह खुश्क पत्ते की मानद कांप रहा था और वह तेज़ तेज़ चलता हुआ यहाँ पहुँच गया। तू यहाँ मौजूद है शमी, तू यहाँ मौजूद है, नहीं जाएगी तू यहाँ से, और इस खानदान को तबाह किए बगैर नहीं छोड़ेगी। बेगम फराज को बचाओ, ये शमी है, इसकी रूह है जो हमसे इंतकाम लेने आई है, इसे यहाँ से भगा दो, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या मुसीबत है मम्मी, और अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया है और डैडी पागल हो गए हैं। उन्होंने खुद को तबाह कर लिया है तो हमें क्यों तबाह करना चाहते हैं। दोपहर को भी उन्होंने मारिया की इंसल्ट की थी और अब भी वही रट लगाए हुए हैं। मम्मी आप इंतजाम करें इनका, वरना मैं इस कोठी से चला जाऊंगा। और फराज ने सख्त लहजे में कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो शाहद? और शमी फिर तुम्हारे दामन में जिंदा हो गई है, वो मर चुकी है और तुम भी अगर उसकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा सकते तो खुदकशी कर लो। और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ अपनी मौत गाह में मौत का इंतजार करो। सुनो तो सही, मैं सच कह रहा हूँ। दीन खान, सलाहुद्दीन, इन्हें घसीट कर ले जाओ यहाँ से और बंद कर दो, ताला लगा दो, और इसके बावजूद अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करें तो उन्हें पागल खाने भिजवा दो। दो कवि हिकल मुलाजम शाहद को जबरदस्ती बाहर ले गए और बेगम साहबा का मूड खराब हो गया था। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और शमी की कहानी सुनाई। ये सब गुनाहों की सजा है मारिया बेटा। और शाहद ने पूरी ज़िंदगी झूठ और फरेब के दरमियान गुजारी। उसने मुझसे शादी की और चंद माह के बाद ही उकता गया और घर से गायब रहने लगा। मैं फाके करती रही और फिर मुझे मालूम हुआ कि उसने शमी नामी लड़की से शादी कर ली है और उसके बाद मुल्क से बाहर चला गया। तवील अरसे के बाद वो मेरे पास पनाह लेने आया और कोई उसके फरेब का शिकार हो गया था और उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। मैं सब कुछ भूल कर उसके लिए सीना सुपर हो गई और मैंने हर खतरा मोल लिया और उसे बचा लिया। और फिर कुछ दिन ठीक रहने के बाद वो दोबारा भाग गया और मेरी इस जान फरोशी के सिले में उसने मुझे एक छोटा सा बंदला खरीद कर दे दिया। और फिर उस कमीना सिफ्त इंसान ने उस लड़की को कत्ल कर दिया जिसने उससे शादी की थी, और अपने मुजरम ज़मीर को धोखा देने के लिए शराब का बेतहाशा इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैं फिर उसका सहारा बनी, लेकिन उससे वफा की कोई उम्मीद नहीं थी। और वही हुआ, शराब और औरत। मेरी सारी ज़िंदगी दुखों में गुजरी और उसने कहीं से दौलत हासिल कर ली, लेकिन दौलत सुकून तो नहीं देती। और अगर मेरे बच्चे मेरा सहारा ना होते तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। और अब मेरा वक़्त है, मेरा दौर है और मैं इससे इंतकाम ले रही हूँ। और मैंने उसे बेहसियत कर दिया है और वो इसी काबिल है। हाँ, वो इसी काबिल है। और मैंने नफरत से सोचा। कई दिन गुजर गए और उसके बाद शाहद भी नज़र नहीं आया। उसकी रिहाइशगाह का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया और उसे वहाँ से बाहर आने की इजाज़त ना थी। मेरी दौलत की मुंतकली के इंतजामात हो रहे थे, लेकिन मैं बेसकून थी। मैं तो चाहती थी कि शाहद बार बार मेरे सामने आए और अज़ियत से तड़पे बिल बुलाए और मैं उसके कर्ब से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि नोमी दूर से चीखा और मैं चौंक पड़ी। और मैंने उस दरवाजे को आग की लपेट में देखा जो उस कमरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता था। खिड़कियां और कमरे का फर्नीचर, कालीन, सब कुछ जल रहा था और चारों तरफ आग लग रही थी। और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। नोमी रोशनदान में बैठा हुआ था। ये क्या हुआ नोमी, आग लगी है, नोमी ने कहा और हंस दिया। और मैं मुसीबत में हूँ और तुम हंस रहे हो, मैं जल कर बोली। और नोमी रोशनदान से उठकर मेरे हाथों पर आ बैठा और बदस्तूर हंस रहा था। नोमी कमीने, अब क्या होगा? और आग उस पागल बूढ़े ने लगाई है और बाहर बहुत से लोग जमा हैं और वो उन सब के दरमियान चीख रहा है और कह रहा है कि वो शमी है, एक रूह है जो उन्हें तबाह करने आई है और वो उनसे इंतकाम ले रही है। उसे जल जाने दो, वरना सब कुछ उसके इंतकाम का शिकार हो जाओगे। मैंने कुछ काउंटर पर ज़बान फेर कर कहा और तब नोमी बोला, आओ शमी, यहाँ घुटन बढ़ती जा रही है, आग फैल रही है, आओ बाहर चलें। और मैं चौंक पड़ी और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। और मैं हड्डियों और गोश्त के इस पंजर से बाहर निकल आई और बड़े सुकून का एहसास हुआ।
एकदम कफियत बदल गई मेरी और मुझे दुख होने लगा। अफसोस कि किस नापाक कसाफत में दाखिल हो गई थी मैं, और बिला वजह मेरे ज़हन में फासद ख्यालात पैदा हो गए। और भला मुझको उससे इंतकाम लेने की क्या ज़रूरत थी? इंतकाम लेने वाला तो कोई और ही है। और तौबा तौबा, कैसा गुनाह किया है मैंने। बेचारा शाह तो खुद ही जिंदा दरगोर है, और उसे दुख पहुंचाकर मुझे क्या मिला। और मैंने आग में लिपटे हुए अपने बदन को देखा, और आग मेरी हड्डियां चाट चुकी थी। नापाक खाकी कसाफत और तसव्वुर मेरा भी नहीं था, और बदन की क़यादत से ऐसे ही गंदे ख्यालात की मतहरक होती है। रूह कितनी हल्की फुल्की होती है, और उसमें कोई बुरा जज्बा पैदा नहीं होता। और ये सिर्फ उस कैद खाने की गलाजत थी। और मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे, और ये सारे जज्बे उस कसाफत की तख्लीक थी। छी छी छी, और मैं कितनी अहमक बन गई थी। शरीर नोमी, आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक ना करना। आओ वापस चलें, और चलो यहाँ से। मैं बाहर निकल आई, और अब हमारा रुख अपनी सुकून गाह की तरफ था, और जिसमें गहरी खामोशी फैली हुई थी। जहाँ सकून ही सकून था, गहरा बेकरां सकूत और खामोशी। और तुम इन खंडरात को देख रही हो। हाँ, यहाँ अब्दी सुकून है, और इससे अच्छी जगह कोई नहीं। असल में ज़िंदगी बहुत ही छोटी चीज़ होती है। बचपन नासमझी की उम्र, और जवानी समझ कर ना समझने की, और बुढ़ापा बेबसी की उम्र होती है। ये समझ तो लिया जाता है कि मगर कुछ किया नहीं जाता। और आधा हंसने लगी। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? और शमी उसे घूरते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं। और फिर तुम क्यों हंसी? अपने आप पर। वो क्यों? और मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। वो क्या? रहने दो, क्या करोगी पूछकर? ये तो बुरी बात है। क्यों? शमी ने कहा, और मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, और असल मूड कुछ और है। राधा ने सोचते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। और शमी मुंह फेर कर बोली, अरे नहीं, क्यों नाराज़ हो जाओगी? और तुम तो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी हो, और इसलिए कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बता रही। और शमी ने शिकायती अंदाज में कहा, तुम क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? यही कि तुम कैसे मरी, शमी ने कहा। और राधा फिर हंस पड़ी। तुम हंसने क्यों लगी? और शमी ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा सवाल ही तो हंसी की वजह है। क्या मतलब? और शमी हैरत से बोली, मैं मरी नहीं हूँ, और अभी तक जिंदा हूँ। मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? बिल्कुल नहीं। और फिर तुमने रूप कैसे बदले थे? और ये ताकत तो सिर्फ रूहों को हासिल होती है, लेकिन मुझे ज़िंदगी में ही ताकत हासिल है, और बस मुझे आशीष भगोनत का आशीर्वाद हासिल है। आशीष भगोनत कौन है? हम उसे शैतान कहते हैं। क्या वाकई? हाँ। और तब तो तुम बदकिस्मत हो, शमी ने कहा। वो क्यों? और राधा ने चौंक कर पूछा। मेरी कहानी से तुमने इबरत हासिल नहीं की। तुम क्या समझती हो कि बुराई के जितने पहलू निकलते हैं, और क्या वो सब शैतानी अमल का नतीजा नहीं? आशीष भगोनत को यही शिकायत है। वो क्या? और वो भी कहते हैं कि ये इंसान बड़ी अजीब चीज़ है, और यानी फेल बद को तो खुद करे, और लानत शैतान पर। गलत। शैतान ही इंसान के दिलों में बुराई पैदा करता है। और तुमने मेरे लिए एक खूबसूरत रास्ता खोल दिया है शमी। अब मैं इस संसार में घूमूंगी, और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूंगी कि काले और सफ़ेद में काला कौन करता है, और सफ़ेद कौन। दुनिया का तजर्बा करना एक बेहतरीन मशगला है, और इस तरह मतवज्जा कराने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, और तुम इसी सुकून गाह में सुकून की ज़िंदगी बसर करो, और खूब शरारतें करो। और राधा वहाँ से आगे बढ़ गई। रजनी जानती थी कि ये रेल का ये सफ़र बेमानी नहीं, और अब तो वह तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ हो गई थी। उसे ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि उसका जो भी कदम उठता है वो कभी कभी किसी न किसी मकसद से उठता है, और कुदरत उससे कोई काम लेना चाहती है। और ये भी एक दर्दशीनत की मंजिल थी, और उसे अभी बहुत सी बातों का इल्म खुद ब खुद होने लगा, और वह सूरत हाल से वाकिफ़ हो जाती थी। बांके लाल ने अपनी बेटी निरूपा के बारे में जो कुछ बताया था, रजनी को उसका अंदाज़ा था, लेकिन ये अंदाज़ा उसे नहीं था कि बांके लाल इतना दौलतमंद आदमी होगा। बांके लाल की हवेली बेहद आलीशान थी, और बहुत से मुलाजम, हसीन और जमील लान, खूबसूरत इमारत, बहरहाल सब कुछ था। और रजनी को अब इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी ना रही थी। वो तो बस अब एक नई मंजिल में दाखिल हो चुकी थी, और उसे दुनिया की चीज़ों में कोई दिलचस्पी ना रही। शैतान जब उनके सरों पर हाथ रखा था, तो उन्हें दुनिया की हर आसाइश हासिल हो गई थी। ये हकीकत है कि रजनी दिल से उस हसीयत को कबूल नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल बहनों के साथ उसे शरीक तो रहना था। चुनाचा वो भी इन तमाम चीज़ों से आशना हो गई, और बांके लाल उसे इज्जत के साथ इस जगह ले आया, और उसने कहा, बेटा, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो, और तुमने हमारा बनना कबूल कर लिया है, तो हमारे साथ कुछ अरसा क़ियाम करो, और यही हमें खुशी होगी, और मैं तुम्हें निरूपा को दिखाई देता हूँ। कुछ घंटे के बाद बांके लाल रजनी को लेकर चल पड़ा, और एक बहुत ही खूबसूरत
सजे सजाए कमरे में नरूपा मसहरी के दरमियान बैठी हुई थी। उसका चेहरा चांदी की तरह चमक रहा था और लंबे लंबे गट्टाओं जैसे स्याह बाल जो शायद पिंडलियों तक नीचे तक आते थे बिखरे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखें बिस्तर में गड़ी हुई थीं। वो अजीब से अंदाज में साकत बैठी हुई थी और रजनी अंदर दाखिल हुई तो अचानक उसने चेहरा उठाया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शदीद वहशत थी। उसने घूर कर रजनी को देखा और फिर अचानक उसकी हलक से दहशत भरी चीखें निकलने लगी। वो खौफजदा हो गई और बांके लाल और उसकी धर्मपति हैरान निगाहों से अपनी बेटी को देख रहे थे। नरूपा चीख कर कह रही थी, बचाओ बचाओ मुझे, इसे बचाओ, बचाओ मुझे इससे। अरे तुम इसे कहाँ से ले आए हो? निकालो इसे यहाँ से और मुझे बचाओ इसे। लेकिन वह अपनी जगह ये इस तरह से बैठी हुई थी जैसे उसे हिला जुला भी नहीं जा रहा हो। रजनी खामोशी से उसे देखती रही और उसके ज़हन पर न जाने कैसे कैसे ख्यालात गुजर रहे थे और वह खुद उस लड़की पर निगाहें जमाकर साकत हो गई और दफतन उसे अपने कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। हाँ रजनी, ये तुम्हारी पहली मंजिल है, मंजिल समझती हो ना, और ये लड़की तुम्हारी तवज्जो की तालब है और ये पहला इम्तहान है तुम्हारा। मैं कुछ ना कहूँगी और तुम खुद इसे देखोगी और तुम्हारी आंखों की बेनाई बड़ी हुई है और तुम्हें पता चल सकता है कि ये किस मुश्किल का शिकार है। ये कोई मुश्किल काम नहीं और पता चल जाएगा तुम्हें। यहाँ कुछ अरसा क़याम करो और लड़की तुम्हें देखकर खौफजदा हो गई है, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हें वो नज़र आएगा जो है, लेकिन अब भी नहीं, इसे तन्हा छोड़ दो। उधर निरूपा चीखती जा रही थी, हटा दो इसे यहाँ से, हटा दो, और ये मेरी दुश्मन है और ये मुझे खा जाएगी, ये मुझे कत्ल कर देगी, ये खूनी है, हटा दो इसे यहाँ से। और निरूपा चीखती जा रही थी। रजनी ने निगाह उठाकर बांके लाल को देखा और फिर मध्यम लहजे में बोली, आइए चाचा जी। बांके लाल ने एक ठंडी सांस ली और रजनी के साथ वापस पलट पड़ा। उसने चलते हुए अपनी बेबी से कहा, ज़रा इसे देखो, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ और पता नहीं ये क्या हो गया है इसको। मैं देखती हूँ, आप जाइए, बांके लाल की धर्मपत्नी ने कहा और बांके रजनी के साथ बाहर निकल आया। माफ़ करना बेटी, बात कुछ समझ में नहीं आई। वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है, लेकिन ऐसी कोई बात है और इसने पहले नहीं की और ये सब कुछ तो बड़ा हैरतनाक है। मुझे ताज्जुब है। रजनी खामोश रही और बांके लाल ने फिर कहा, जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं ज़रा देखता हूँ उसे। नहीं चाचा जी, आप आइए ज़रा मेरे साथ, रजनी ने कहा और बांके लाल चौंक कर उसे देखने लगा और फिर बोला, बेटा कोई ख़ास बात है? हाँ चाचा जी। और बांके लाल हैरान हैरान सा उसके साथ आगे बढ़ आया। रजनी उसके साथ अपने कमरे में पहुंच गई। चाचा जी, एक बात मैं आपको बताऊं, और सबसे पहले आप मुझसे यह वादा कीजिए कि मेरे बारे में किसी बुरे अंदाजे में नहीं सोचेंगे। इंसान अगर अपनी भलाई और लालच के लिए कुछ करना है तो ऐसी शक्ल में करता है जब उसे उस बात का यकीन हो कि किसी जगह से सब कुछ मिल जाएगा। चाचा जी, ना मैं चोर हूँ और ना मैं कोई डाकू और ना ही लालची हूँ किसी बात की। आपके घर कुछ दिन रहना चाहती हूँ और 2 वक्त की रोटी तो इंसान को किसी फ़कीर को भी दे देता है, और आप यही समझ लें। मुझे रोटी दे दीजिएगा और जाते हुए एक पैसा भी आपसे मांगूं या कोई लालच करूं तो जूते मार कर निकाल दीजिएगा। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि आप ये ना समझें कि मैं आपको दौलतमंद देखकर मैं ये सोच रही हूं कि चलो कुछ समय यहाँ गुजार लिया जाए। कुछ दिन रहना चाहती हूँ चाचा जी, और एक कोशिश करना चाहती हूँ। बांके लाल अजीब सी निगाहों से रजनी को देख रहा था और फिर उसने कहा, बेटा पैर से जूता निकालो और 10 मार लो अपने चाचा जी के सर पर। इतने प्यार से तुम्हें यहाँ लाया हूँ और तुमने चाचा जी कहा है तो मुझे निरूपा याद आ गई है, और जो खुद भी मुझे चाचा जी कहती थी, लेकिन अब तो बरसों से होश में नहीं है। बस जो हालत है उसकी तुम देख चुकी हो और उस पर तुम ये कह रही हो कि तुम पर कोई शक करूँगी और ये समझूंगी कि तुम किसी लालच से यहाँ रुकना चाहती हो। बेटा, जब तक तुम्हारा दिल चाहे रुको। और हाँ, तुमने एक बात कही है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। चाचा जी, मेरी सारी बातें ऐसी हैं कि आपकी जगह कोई भी हो मुझ पर शक करेगा, लेकिन अब करते हैं तो करते रहें। असल में थोड़ी सी मालूमात है मुझे और ऐसी बीमारियों के बारे में, और मैं कोई 10-12 दिन तक आपको यहाँ रहकर निरूपा को देखना चाहती हूँ कि उसकी बीमारी का मकसद क्या है, और बस उसके बाद चली जाऊँगी। बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, ऐसी बात नहीं, और जो तुम्हारा मन चाहे करो। और जहाँ तक निरूपा का मामला है, मैं तुम्हें बताऊं कि वो जहनी तवाज़ुन ज़रूर खो चुकी है और उसके अंदर कुछ अजीब सी बातें पैदा हो गई हैं, लेकिन उसने कभी नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया, और जो काम उसने इस वक्त किया है वो भी इससे पहले कभी नहीं किया। बस चाचा जी, इतना ही कहना है मुझे आपसे। हाँ, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो और जहाँ दिल चाहे आओ जाओ, और तुम खुद को कोई तकलीफ़ ना करना। हमसे कहना तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे।
बांके लाल जी मुस्कुराए और उसके बाद वो रजनी के कमरे से बाहर निकल गए और बहुत देर तक रजनी सोचती और मुस्कुराती रही। फिर उसने निरूपा की हालत पर गौर किया और उसके चेहरे पर गौर और फिक्र की लकीरें दौड़ गईं। निरूपा की ये हालत किस लिए है? और वैसे यकीनी तौर पर कोई मसला जरूर था, क्योंकि आना ज़ुबैदा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी और कोई न कोई मसला ज़रूर हुआ था। चुनाचा वो सोचने लगी कि अब उसे सही अंदाजे में काम करना शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल बहुत देर तक सोचते रहने के बाद वह मुतमईन हो गई। जो काम होना होता है उसके लिए हालात खुद ब खुद साजगार हो जाते हैं। बहरतौर अब इस सिलसिले में उसे मालूमात हासिल करनी थी। अपने तौर पर वह बहुत मोहतात थी और किसी के घर में दाखिल होकर, वो भी ऐसे इज्जतदारों और अच्छे लोगों के घर में, कोई ऐसी हरकत नहीं की जा सकती थी जिससे अपनी इज्जत पर भी हर्फ आ जाए। उसने काफ़ी देर सोचा और फिर अपने तौर पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। रात के कोई 12 बजे के वक्त उसने तैयारियां की और अपना हुलिया बदलने लगी। कम से कम ये बात इसलिए बासे खुशी थी कि वह अपना हुलिया बदल सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों जहन में सांप बन जाने का ख्याल ही आया। चुनाचे वह नागिन बनकर आहिस्ता से बाहर निकली और एक सिमत चल पड़ी। और वह देखना चाहती थी कि रात को निरूपा की क्या हैसियत होती है। वैसे निरूपा शक्ल सूरत में बेमिसाल थी और इंतहाई खूबसूरत। वो चलती हुई एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां से निरूपा के कमरे में आसानी से दाखिल हुआ जा सकता, और फिर वो अंदर पहुंच गई। उसका सोचना बिल्कुल दुरुस्त था और रात आधी के करीब गुजर चुकी थी, लेकिन निरूपा के कमरे में रोशनी थी और उस रोशनी में रजनी ने जो कुछ देखा उसके लिए नाकाबिले यकीन था। निरूपा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी और उसका चेहरा इस कदर हसीन नजर आ रहा था कि देखने वाली आंख उसे देखकर दोबारा देखे बगैर न रह सके, और वह बेपनाह खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने बाल मोती पुराए और मेकअप के सामान से उसने अपने चेहरे को हसीन तर बनाया। फिर वह अपनी जगह से उठी और उसने एक खूबसूरत साड़ी निकाली और लिबास तब्दील करने लगी। उस हसीन साड़ी में वो क़यामत नजर आ रही थी और रजनी बारीक से पुतले सांप की हैसियत से एक गोशे में बैठी अपनी चमकदार आंखों से उसे देखती रही। उसे बेपनाह खुशी थी कि पहले ही मरहले पर उसे कामयाबी हासिल हुई। वो निरूपा को देखती रही और निरूपा पूरी तरह तैयार हुई और उसके बाद खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। रजनी तेज रफ्तारी से रेंगती हुई उसके पीछे चल पड़ी। निरूपा हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंची और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उधर ताला पड़ा रहता था, लेकिन उसने ये ताला बड़ी आसानी से खोल लिया और वह पैदल सफ़र करती एक तरफ जा रही थी और रजनी को उसका ताक़ब करने के लिए छुपने के सहारे लेने पड़ रहे थे। निरूपा का सफ़र काफ़ी लंबा था और वह शहर के बाएं सिमत एक वीरान इलाके में चल पड़ी और फिर फासला तय करती हुई आखिरकार एक ऐसी हवेली में पहुंच गई जो शहरी आबादी से अलग थलग थी। वो काफ़ी पुरानी बनी हुई मालूम होती थी और निरूपा जैसे हवेली के दरवाजे पर पहुंची, रजनी ने वो दरवाज़ा खुलते हुए देखा और वह देखना चाहती थी कि दरवाज़ा खोलने वाला कौन है, लेकिन ऐसी कोई शख्सियत उसे नजर ना आई और वह अंदर चली गई तो रजनी भी उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। वो निरूपा को निगाहों से उजल नहीं करना चाहती थी। हवेली कदीम तर्ज की बनी हुई थी और बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी हुई। रजनी हैरत भरी निगाहों से निरूपा को देखती रही और निरूपा इस वक्त बिल्कुल ठीक मालूम हो रही थी। रजनी ने देखा कि हवेली के एक मशरकी गोशी में रोशनी हो रही है और निरूपा उस तरफ जा रही थी और फिर वह एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में दाखिल हो गई। उस कमरे में पत्थर के 4 मुजस्मे रखे हुए थे और उनकी शक्ल सूरत अजीबो गरीब थी। तेज रोशनी हो रही थी और रजनी को एक गोशी में पहुंचकर कुंडली मारकर बैठ गई और वह इस हैरान कुन मंदिर को बड़ी अजीबो गरीब निगाहों से देखने लगी। फिर अचानक इस बड़े हाल के दरवाजे से लोग बाहर निकलने लगे और ये साजिंदे थे। उनमें से किसी के हाथ में पुतला था और किसी के हाथ में सारंगी, और इसी तरह के दूसरे साथ भी वो लोग साथ लिए हुए थे और वह आराम से नीचे बैठ गए और निरूपा कमरे के दरमियान में फर्श पर बैठ गई। खामोशी से रजनी ये सारा मनाजर देख रही थी और फिर उसने एक शख्स को देखा। अच्छी खासी उम्र का अजीबो गरीब लिबास पहने हुए एक साधु किस्म का आदमी था और बड़ी बड़ी मूछें और गले में कीमती हीरों की मालाएं, जिनसे माहौल जगमगाने लगा और एक जगह वो आकर बैठ गया। और फिर 2 लड़कियां सोने के बर्तन लिए हुए सामने आ गईं। उन्होंने ये बर्तन एक तरफ रख दिए और उसमें से कोई सयाल सा निकाल कर उन्होंने उस शख्स को पेश किया और उसके बाद आवाज़ उभरी, हाँ निरूपा जी, शुरू हो जाओ। निरूपा ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और फिर अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा और दोनों हाथ जोड़कर और फिर बाद में पैरों में घुंघरू बांधे और साजिंदों ने हल्के हल्के साथ छेड़ दिए। निरूपा ने दोनों हाथ फैलाए और उसके बाद उसका बदन मुतहरक हो गया। हसीन तरीन लिबास में मलबूस वो देवदासियों का रक्स कर रही थी
और आहिस्ता आहिस्ता सांस तेज होते जा रहे थे और निरूपा का बदन थरकने लगा। वो आराम से रक्स कर रही थी और उसके बदन की धड़कन तेज होती गई और साधु की धुन, निरूपा का रकस और ये सारी चीजें देख देख कर रजनी हैरान हो रही थी और माहौल पर एक सहर सा तारी हो गया। उसे अंदाजा था कि निरूपा किस कदर खूबसूरत रक्स कर रही है और ये रकस बहुत देर तक जारी रहा और आखिरकार निरूपा थक कर जमीन पर बैठ गई और तब वो शख्स अपनी जगह से उठा और उसने निरूपा का बाजू पकड़कर उसे कमर में हाथ डालकर उठाया और बोला, बहुत अच्छा नाचती हो निरूपा, और लो ये अमृत जल पियो। उसने एक गिलास में शराब भरकर निरूपा को दी और निरूपा ने खामोशी से वह शराब पी ली। वो कहने लगा कि बस अब तुम वापस जाओ और थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी और तुम्हारा घर से दूर रहना मुनासिब नहीं। मैं अभी नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कुछ लोगों को पता चले। तुम ऐसा करो कि आराम से अपने घर जाओ और किसी को खबर ना होने दो, और अभी इसी वक्त तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता जब तक सारा काम पूरा ना हो जाए। निरूपा अपनी जगह से उठी, उसने दोनों हाथ जोड़े और उसके बाद वहां से वापस चल पड़ी। रजनी को भी होश आ गया था और उसके पीछे पीछे चल पड़ी और वक्त काफी गुजर गया था और अंदाजा ही नहीं हो रहा था और रूपा तेज रफ्तारी से चली जा रही थी। अब रजनी को उसके ज्यादा तेजी से ताकब करने की जरूरत नहीं थी और वैसे भी सारी रात खराब हो गई थी, इसलिए उसे नींद की झोंक भी आ रही थी। उस वक्त कहीं से अजान की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद नमाजी नमाज पढ़ने के लिए निकल खड़े हुए और यहाँ रजनी को एक हादसे से दो चार होना पड़ा। अचानक किसी नमाजी ने उसे देख लिया और जोर से चीखा, सांप सांप, और फिर 2-4-5 आदमी उसके पीछे दौड़ पड़े और उनमें से कुछ ने पत्थर भी उठा लिए थे और रजनी पर बरसाने शुरू कर दिए। रजनी बुरी तरह खौफजदा हो गई और बस तकदीर ही थी कि बच गई, वरना कोई भी पत्थर उसके बदन को कुचल सकता था। रजनी नहीं जानती थी कि ऐसे मौके पर बचने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये बात उसने सोच ली थी कि सांप बनकर यह ज़बरदस्त खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं, और उससे तो बेहतर था कि फिजा में परवाज़ करते हुए कोई चीज़ बन जाती। और जब ये सब कुछ देखना ही था तो किसी भी शक्ल में देखा जा सकता था, और उसने आइंदा के लिए यह फैसला कर लिया कि वह सांप का रूप इख्तियार नहीं करेगी। बहरहाल तकदीर अच्छी थी और लोग उसे मारने में कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार वो बांके लाल जी की हवेली में दाखिल हो गई और फिर उसे अपने कमरे में आकर दम लिया। और निरूपा के बारे में उसे अभी सही अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि निरूपा घर वापस आ गई होगी। अलबत्ता उसे बहुत सी बातें परेशान कर रही थीं। निरूपा कहाँ जाती है और क्या वो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाती है और जानकर पागल बनी हुई है, जबकि बेचारा बांके लाल तो अपनी बेटी के लिए सख्त परेशान था और सोच रहा था कि उसकी बेटी पागल हो चुकी है। लेकिन ये कैसा पागलपन था और ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल उसके बाद रजनी को नींद आने लगी और वह बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गई। फिर एक मुलाजमा ने आकर उसे जगाया और रजनी ने उसकी सूरत देखी और जल्दी से उठकर बैठ गई। माफ़ी चाहती हूँ देवी जी, असल में बांके लाल महाराज ने कहा है कि पूछूं तो सही और आपकी तबीयत खराब तो नहीं, वरना आप इतनी देर से नहीं उठती। हाँ, रात को नींद नहीं आई। और कहाँ है चाचा जी? नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं आपका। अरे, रजनी ने कहा और जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोकर बाढ़ संवार कर नाश्ते के कमरे में पहुंच गई। बांके लाल, उनकी धर्म पत्नी और कुछ लोग नाश्ते पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। बेटा, मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा कहीं तुम महसूस ना करो और हमने तुम्हारे बगैर नाश्ता कर लिया। और तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी चाचा जी, बस ज़रा रात को नींद नहीं आई थी। चलो आओ नाश्ता करो, और सुनो, अगर तबीयत ठीक ना हुआ करे तो नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया करो और आराम से उठा करो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। जी चाचा जी, आप बताइए कि निरूपा कैसी है? ठीक है, अपने कमरे में है। नाश्ता कर लिया उसने? हाँ, नाश्ता कर चुकी है। रजनी ने इत्मीनान की सांस ली और उसे कम से कम ये पता चल गया था कि निरूपा आराम के साथ अपने घर वापस पहुंच चुकी है। लेकिन रात के मामलात में उसका जहन शदीद तरीके से उलझा हुआ था। फिर दूसरी रात रजनी ने यह सोचकर निरूपा के इर्द गिर्द मंडलाती रही कि हो सकता है निरूपा आज भी वहां जाने की कोशिश करे, लेकिन उस दिन निरूपा नहीं गई थी। अलबत्ता दूसरे दिन रजनी ने फिर वही मंजर देखा और निरूपा तैयार होकर उस तरफ चल पड़ी। और हैरत की बात यह थी कि आज तक हवेली में रहने वाले किसी भी शख्स को यह बात मालूम नहीं हो सकी कि निरूपा इस तरह रातों को घर से निकल जाती है, और ये बात ज़रा ताज्जुब खेज थी। बहरहाल आज रजनी ने दूसरा रूप अख्तियार किया और वे खूबसूरत तितली बनकर वहां आ पहुंची और वहां का मंदिर बिल्कुल ही वही का वही था। लेकिन आज एक खौफनाक अमल हुआ। रजनी तितली की हैसियत से एक ऐसी जगह बैठी हुई थी जहां एक रोशनदान बिल्कुल करीब था और सजिंदे साज बजा रहे थे और निरूपा रक्स कर रही थी कि अचानक ही कमरे में कड़ाका हुआ जैसे बिजली चमकी हो
اور اس کے بعد ایک دھواں سا کمرے میں بھرنے لگا۔ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن چمکیلا دھواں آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بھیانک شکل اس دھویں میں نمودار ہوئی، اور اس شخص کو ان میں سے کسی نے نہ پہچانا ہو، لیکن رجنی نے ایک نگاہ میں اسے پہچان لیا۔ یہ آشیش بگون تھا۔ رجنی سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور ادھر وہ شخص جو راجہ اندر بنا بیٹھا تھا جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے اپنی ساری مالائیں وغیرہ اتار کر زمین پر ڈال دیں، اور پھر آگے بڑھ کر شیطان کے قدموں میں جھک گیا۔ جے بھگونتا۔ شیطان ایک زوردار ٹھوکر اس کے منہ پر ماری، اور وہ الٹ کر پیچھے گر پڑا، اور سازندے جو پہلے ہی خوف سے کھڑے ہو گئے تھے ہاتھ جڑے ہوئے تھر تھر کانپنے لگے، اور نروپا درمیان میں اس طرح ساکت ہو گئی تھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو اور اس میں جان ہی نہ ہو۔ وہ ایک خاص پوز میں تھی، اور اسی پوز میں ساکت و شامت ہو گئی۔ رجنی اس خوفناک منظر کو دیکھتی رہی، اور الٹ کر گرنے والا شخص پھر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، معافی چاہتا ہوں، क्षमा چاہتا ہوں بھگونتا، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، اور جہنم کے اندے میں نے تجھے کیا نہیں دیا، اور تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں، اور تجھے پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خرابی آ گئی ہے۔ کہا مہاراج، میں نہیں سمجھا، تو نے میرے نام پر سب کچھ کر رہے ہے، لیکن تجھے یہ بات نہیں معلوم کہ ہمارے دشمن ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور نروپا کا کھیل تو نے خود شروع کیا تھا اور اب خود ختم کر رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، بالکل نہیں سمجھا۔ آپ جانتے ہیں گرو دھرم چند نے یہ کام کیا ہے، اور میں انہی کے اشاروں پر یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ سارے کے سارے نکارا ہوتے جا رہے ہو، اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور جگہ جگہ یہ لوگ مجھے شکست دے رہے ہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس وقت مجھ پر کیا بیت رہی ہے، اور مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ میرے دشمن کامیابی کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کام کو شروع کر دینا کوئی مشکل نہیں، لیکن جب ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمارا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ ہر اس جگہ جا رہے ہیں جہاں ہمارا کام ہو رہا ہے، مگر مہاراج میں سمجھا نہیں۔ دھرم چند کو کسی نے مجبور کیا تھا کہ وہ تجھ پر کام کرے اور نروپا کو تیری قیدی بنا دے، پر یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر اس وقت تیرے پیچھے جو چیز لگی ہے وہ تیرا ستیہ ناش بھی کر سکتی ہے۔ جے بھگونتا، اور تمہاری موجودگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ دیکھ، وہ تتلی بیٹھی ہے نا، وہ جاسوس تتلی ہے، اور وہی تجھے نقصان پہنچائے گی، سمجھا؟ مار سکتا ہے تو اسے مار دے۔ آشیش بھگونت نے رجنی کی طرف اشارہ کیا، اور رجنی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایک لمحے کے اندر یہاں سے نکل جائے، چنانچہ وہ پھرتی سے اپنی جگہ سے اڑنے کے لیے پر تولنے لگی۔ ادھر وہ بڑی مونچھوں والا شخص اچانک ہی ایک پرندے کی شکل اختیار کر گیا، اور ایک ایسا مونچھ دار مکروہ پرندہ جو تتلیوں کا شکار کرتا ہے، اور وہ تیزی سے رجنی کی جانب جھپٹا، اور رجنی روشن دان سے باہر نکل گئی۔ یہاں اسے ذرا سی غلطی ہوئی تھی، یعنی اس پرندے نے اس سے اپنا سائز بڑا رکھا تھا اور روشن دان چھوٹا۔ رجنی تو اپنی چھوٹی سی جسامت کے ساتھ برق رفتاری سے باہر نکل گئی، لیکن وہ روشن دان سے باہر نہیں نکل سکا، اور اسے ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ اس دوران رجنی چھت پر پہنچ چکی تھی، اور وہ ایک دم سے چھت پر بیٹھی۔ اس نے لوٹ لگائی، اور اس کے بعد وہ خوفناک عقاب کی شکل اختیار کر گئی، اور آہستہ آہستہ پیروں سے چلتی ہوئی تھوڑا سا آگے بڑھنے لگی، اور ادھر وہ خوفناک شخص جو پرندے کی شکل اختیار کر چکا تھا اور تتلی کو پکڑنے کے لیے جھپٹا، کسی طرح اپنے بدن کو سکوڑ کر روشن دان سے باہر نکلا، اور اس کے بعد اس نے تتلی کی تلاش میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، لیکن اس وقت ایک خوفناک عقاب سے اسے سامنا کرنا پڑا، اور عقاب نے تیز چیخ کے ساتھ پرواز کر کے اس پر پنجے مارے، اور وہ پرندہ زخمی ہو کر چھت سے نیچے گر پڑا۔ رجنی نے ایک کامیاب داؤ استعمال کیا تھا، اور اسے زخمی کر کے وہ پھرتی سے اڑتی ہوئی بانکے لال کی حویلی کی جانب چل پڑی۔ برق رفتاری سے اس نے اپنا یہ سفر طے کیا، اور اس کے بعد بانکے لال کی حویلی میں پہنچ گئی۔ حویلی میں پہنچ کر وہ رکی اور ادھر ادھر دیکھا، اور اس کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا روپ بدل لیا، اور اس کا سینہ بری طرح پھول چکا تھا، سانس سینے میں نہیں سمائی جا رہی تھی، اور جو حادثہ اور جو واقعہ پیش آیا وہ اس کے لیے بڑا ہی سنسی خیز تھا۔ اس نے تھکے انداز میں مسہری پر بیٹھے ہوئے سوچا کہ شیش بھگونتا کو اس کی یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا ہے، لیکن اگر شیطان نے ناگ چندر کو ادھر بھیج دیا تو رجنی کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال ایک سنسی خیز عمل تھا، اور ایک نئی بات تھی جو رجنی کے ذہن میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کے دل میں نروپا کا خیال بھی آیا، اور اس نے سوچا کہ نروپا بہرحال کچھ بھی ہے محفوظ ہے، اور ابھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جائے، اور شیطان کو موقع نہ دے کہ وہ اس کا راستہ روکے، لیکن پھر اسے دل میں سوچا کہ آنا زبیدہ اس سے یہ بات کہہ چکی ہے کہ اسے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، رجنی نے سوچا، اور اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔
उसने खुद को यह कहकर सुकून दिया था कि अब वो नेकियों की राह पर है और अल्लाह की कुव्वत उस कायनात की उम्मीद और इंतहा है और उसके आगे कुछ नहीं। और फिर वह दूसरी बातों पर गौर करने लगी। वो उस गुफ्तगू को याद कर रही थी जो शैतान और पुरइसरार शख्स के दरमियान हुई और जो लंबी मूंछों वाला था और जो रजनी के हाथों जख्मी हो गया। और बहुत से सवालात उसके जहन में आए और वो उन पर गौर करने लगी। मसलन गुरु धर्मचंद, और ये गुरु धर्मचंद क्या चीज़ है। और इन बातों में अपना दिमाग खपाने के बजाय उसने फैसला किया कि वो बराह रास्त बांके लाल से इसके बारे में बात करेगी। दूसरे दिन उसने बांके लाल से कहा कि चाचा जी, आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बेटा ज़रूर, ऐसे नहीं तो फिर अब मुझे बाकायदा वक्त देंगे। जब कहे तू बेटा, आप बताइए, आज ही शाम। हम बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर दोनों छत पर मिलेंगे, बांके लाल ने कहा और फिर मुस्कुराकर बोला, पर बेटा की बात क्या है? यहाँ नहीं की जाएगी। और बाद में छत पर, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसी शाम बांके लाल ने रजनी को छत पर बुला भेजा। अरे बेटी, तूने मेरा पेट खराब कर दिया है और सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा। बहुत अच्छा किया आपने चाचा जी, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर बात क्या है बेटी? और चाचा जी, निरूपा के सिलसिले में कुछ पूछना है क्या? पहले एक सवाल का जवाब दें कि आपने उसे कभी आधी रात को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा है? रजनी ने कहा और बांके लाल का चेहरा तारीक हो गया। तू क्यों पूछ रही है बेटा? जवाब दे चाचा जी। मगर तू क्यों पूछ रही है? इसकी वजह है चाचा जी। बता तो सही। ये गलत बात है। सवाल मैं कर रही हूँ और जवाब आपको देना चाहिए, या फिर आप खुलकर ये कह दें कि आप जवाब नहीं देना चाहते। ये बात नहीं है बेटा। मगर तू ये समझ ले कि ये बात मैंने अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं बताई, और औरत ज़ात है और खौफ से मर जाएगी। और मुझे बताएं चाचा जी। हाँ, मैंने देखा है। कहाँ जाती है? भगवान की सौगंध, वो पुत्र है और कोई खोट नहीं उसमें। और ये बात मैं पूरे दावे से कहता हूँ क्योंकि वो मेरी औलाद है। ये किसने कहा चाचा जी कि उसका किरदार खराब है? आपको मालूम है कि वो कहाँ जाती है? नहीं, मैंने उसका पीछा किया था मगर वो गायब हो गई। दूसरा सवाल, और ये गुरु धर्मचंद कौन है? रजनी ने सवाल किया और बांके लाल की आंखें बंद हो गईं और यूं लगा था जैसे बांके लाल की जान निकल गई हो। और रजनी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। Come and fly away